کہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم ایک جگہ موجود ہیں اور یہاں پہ شاہد بھائی ہیں جو ترکی صاحب کے اعزاز میں ایک استقبالیہ ہو رہا ہے لیاقت کاظمی کے جائزہ پر. تو اس میں ہمارے یو ڈی ایل کے پرانے ایک ہمارے ساتھی اور پیپلز پارٹی سے بھی جن کی وابستگی کافی پرانی ہے وہ بھی موجود ہیں. امجد خان صاحب, امجد خان یہ بتائیں مجھے ماشاء اللہ آپ کا تعلق اور ہمارے یو ڈی ایل کا بھی رہا ہے اور آپ سینئر ترین ورکر ہیں, کارکن ہیں پیپلز پارٹی کے. تو یہ جو آج کے جو چھوٹا سا جو گیٹ ٹوگیدر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت سینئر لوگوں کا گیٹ ٹوگیدر ہے. پہلے تو میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مہمان نواز کا, جو آپ نے یہاں پر اتنے اچھے سینئر لوگوں کو یہاں پر شرف ملاقات بخشی اور تمام لوگوں کے خیالات لے رہے ہیں. تو یہاں پر جو آپ پوچھ رہے ہیں اس کا یہ ہے کہ بڑی خوشی ہوئی, بڑے سینئر لوگ ہیں اور مخلص لوگ. سب سے بڑی بات تو مخلص لوگ ہیں, اتنے سینئر ہیں کہ کسی کے اس وقت نالج میں بھی نہیں ہوگا. جیسے ہمارے موصوف لیاقت کاظمی صاحب ہیں, یہ پی ایس ایف کے پہلے پریزیڈنٹ ہیں یونیورسٹی کے, اور انہوں نے بڑی قربانی دی. حتیٰ کہ ان کو گولیاں لگی, لوگوں نے سمجھا کہ یہ شہید ہو گئے, اور اس کے بعد پارٹی کی اتنی خدمات رہی کہ جب یہ بھٹو صاحب کا پیریڈ آیا تو ان کو آخر کس طرح سے یہ یہاں سے گئے اور کس طرح سے یہ امریکہ شفٹ ہو گئے, وہ ایک لمبی کہانی ہے, لمبی داستان ہے. مگر اس کے بعد اب ان کو بالکل ہی اسکرین جیسے آؤٹ ہوتا ہے اس طرح سے. میرا تعلق حیدرآباد سے ہے, اور 1973 میں جب بھٹو نے کنونشن کیا اس وقت یہاں جیسے پی ایس ایف بنی تھی وہاں سپاف بنی تھی, اور اس سپاف میں ڈیلیگیشن میں بھٹو صاحب سے ملاقات کرنے والے حسین شاہ بخاری اس وقت کے مر چکے ہیں, اللہ اس کو جنت نصیب کرے. ہم کے بھائی جان جاوید پٹھان, اور اللہ آپ کو نیکی دے, بڑا اچھے دو چار نام ہیں, تو یونیورسٹی کے تھے سپاف کے اسٹوڈنٹس, اور میں, ہم لوگوں نے ڈیلیگیشن میں ملاقات کی. اور ڈیلیگیشن 3 دن تھا پورے سندھ کا. اس میں ممتاز بھٹو, یہ جتوئی جو ہے غلام مصطفیٰ جتوئی کے والد عبدالحمید جتوئی کے والد جو چیف منسٹر بنے تھے, جتوئی صاحب ان کے والد عبدالحمید جتوئی, پورا سندھ تھا تقریباً. تو ہمارا اتنا زبردست, ہم نے ایئرپورٹ سے لے کر اور سرکٹ ہاؤس تک ان کے لیے گیٹ بنائے تھے جس سے پھول نچھاور ہوتے تھے. پورا ایک ایک فرد سے وہ کھڑے ہو کے وہ سنتے تھے. بھٹو صاحب بیٹھے تھے اس وقت, ممتاز بھٹو صاحب چیف جسٹس سے ختم ہو چکے تھے اور عبدالحمید جتوئی صاحب چیف منسٹر بن گئے. تو ایک طرف جام صادق تھا, ایک طرف وہ تھے, اور بیچ میں ہمارے بھٹو صاحب تھے. انہوں نے ایک ایک کی بات سنی, سپاف کو مضبوط کرنے کے لیے کہا. اس وقت ہم علی نواز شاہ وہاں کا حیدرآباد کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے. علی نواز شاہ کا بہت بڑا کردار ہے, سمجھو رائٹ ہینڈ تھا ایک طرح سے علی نواز شاہ بھٹو صاحب کے, کیونکہ اس سے پہلے بدالحسن زیدی حیدرآباد کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے اور وزیر بھی رہے وہ ٹرانسپورٹ کے. تو وہاں پہ ان کو کڈنیپ بھی کر لیا گیا تھا وزیر ہونے کے باوجود. اس کے بعد جب ان کی وہ ختم ہوئی پریزیڈنٹ شپ, تو علی نواز شاہ کو بنا دیا گیا. علی نواز شاہ نے اس قدر محنت کی کہ جتنے لوگ تھے اردو اسپیکنگ, اردو سندھی لڑائیاں ہوتی تھی, عثمان کینیڈی, ممتاز جنیدی, یہ گنے چنے نام ہیں. جب ہمارے الطاف بھائی کا کوئی نام نہیں تھا, سمجھے نا, اس وقت جو ہے وہ لوگوں نے علی نواز شاہ کی وجہ سے پیپلز پارٹی جوائن کی. اس وقت یہ منور سہروردی بھی وہاں آتے تھے علی نواز شاہ کے پاس, اور یہاں کے تقریباً سینئر لوگ, میں ان میں سے نہیں دیکھتا کسی کو, تو میں اس وقت کا سینئر ہوں. مگر آپ نے ابھی میرے بھائی سے, میرے دوست سے, یہ عابد سہیل آبدی, ایماندار, مخلص, سچے اور اچھے لوگ جیسے آپ ہیں, آپ سے بھی میرا پرانا واسطہ ہے. اور مخلص ہوتا ہے نا, کبوتر باز باز, کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے, باز کے ساتھ اڑتا ہے. غلط آدمی کے ساتھ رہتا ہے, اچھا آدمی اچھے آدمی کے ساتھ رہتا ہے. تو یہ ہمارے جونیئرس ہیں, ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, ہم بڑے بھائی کی طرح سے. جب میں یہاں آیا تھا اس وقت انہوں نے یہاں یہ جوائن کیا تھا پیپلز پارٹی, اور ہم اس وقت بھٹو صاحب ہینگ ہو گئے تھے. ہم جیل جانے کے بعد آئے تھے. جیل میں ہمارے ساتھ بہت سے ساتھی تھے, جس طرح انہوں نے بات کی کوڑوں کی اور سختیوں کی. ہمیں بھی کہا جاتا تھا 14 سال سزا ہو جائے گی آپ کو, یہ ہوگا وہ ہوگا, کیونکہ میرا ایک بہت بڑا وہ تھا. مجھے باقاعدہ اخبار نے ڈکلیئر کیا تھا کہ وہ 2.5 گھنٹے پولیس مقابلہ اور دہشت گردوں کا سرغنہ گرفتار کر لیا گیا اور فلانا. تو یہ باتیں ایسی تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, مگر میرا رب میرے ساتھ تھا اور حق اور سچ پہ کیا تھا. جن لوگوں کے ہم دن رات کام کیا کرتے تھے وہی ہمارے مخالف ہو گئے. تو پتہ جو نورانی نور ہے, اربلا نور, 9 ستارے الائنس بن گیا تھا نا ان کے خلاف, بھٹو صاحب کے یہی لوگ تھے.
इन्हीं लोगों के बाप थे जो आज हैं, इन्हीं लोगों के बाप थे। जैसे मौलवा हमारा डीजल है, इनके वालिद साहब मोहतरम, और दूसरे तीसरे नूरानी मियाँ, ये पूरा 9 अलाइंस ये इनका था। ये भी घर जला रहे थे, ये भी झंडे जला रहे थे, ये भी बहुत कुछ कर रहे थे। तो हमने फेस किया हर चीज़ को। उसके बाद मैं कराची आ गया। यहाँ पर फिर मैंने ज्वाइन करना पड़ा नौकरी ज्वाइन की। आप लोगों का साथ मिला। उस वक्त बहुत कम लोग थे जो कि ये पीपी के थे, नजरिए के थे या साथ चलने वाले लोग थे। मगर मैं बहुत पहले से था। मेरा हमेशा अली नवाज शाह से बहुत करीबी जो नियरेस्ट वास्ता रहा उसका रहा, क्योंकि वो बीबी के भाई भी बने हुए थे। बीबी साहिबा बेगम साहिबा नुसरत भुट्टो घर में ठहरती थी। ये बिलावल भी वही छोटा, मेरे पास फोटो पड़ी है। बिलावल जब पैदा हुआ हॉस्पिटल के बाहर अली नवाज शाह खड़े, हुसैन शाह बुखारी खड़े, अपने उमर खड़े, उमर मेहमान वगैरह, ये उस वक्त ब्लैक एंड वाइट होता था वक्त। बात यह है, लोगों ने हमने बड़ी घर बार छोड़ा। अब इस हालात ऐसे हो गए थे कि अगर 50 लाख का घर है तो वो बेचारा 10 लाख का बेच के भाग रहा है। तो गरीब पंजाबी भागा, गरीब सिंधी भागा, गरीब महाजिर भागा, गरीब पठान भागा, सब भागे और वहाँ पर वो राज हो गया, जो भी राज होना था। जो उसके बाद जैसा कि आपने फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया कि भाई वो सिंधी महाजिर झगड़े होते थे वहाँ पर। जब मैं कराची आया, यहाँ पर ये अल्ताफ़ वगैरह से मुलाकातें हुई लोगों से, तो जब वो कहने लगे भाई उसको ले आओ, उसको करेंगे को ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, और हम लोग इसमें ज्वाइन करवाते। तो उस वक्त हमने उनका नारा सुना कि सिंधी महाजिर भाई भाई धोती नसवार कहाँ से आई। भाई ये कौन सा कहानी भाई, और अजरक डालना और ये सारी चीज़ें, ये इनके बात की बिल्कुल तस्दीक होती है। बड़ा गहराई से ये तो अभी तक पॉलिटिक्स में है, और अल्लाह इनको रखे और इनकी कदर और कीमत मालूम हो। ऐसे हीरे की कदर जौहरी जानता है। ये तो अपने मुँह से नहीं बोलेंगे, मगर सीनियर्स को बहुत पीछे कर दिया गया, बहुत पीछे कर दिया गया। जो जितनी झूठ बोल सकता है, जो जितनी पैदागिरी कर सकता है ना, वो उतने ही आगे। अब मैं किस किस का नाम यहाँ पे गिनाऊँ, सबकी उतर जाएगी सारा उनका। अब हक और सच बोलने पे आऊँगा तो ऐसे ऐसे नाम बेनकाब हो जाएंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। जो लोग वहाँ पे हैदराबाद के अंदर जो ना यामा मोटरसाइकिलों पे चलते थे, जूडो करा के सिखाते फिरते थे, वो अरबपतियों के कनाडा में मिलियनर है, समझे ना। फार्म हाउस लिए हुए, पता नहीं क्या क्या लिए। सब की असलियत जानता हूँ। ये भी जानते हैं कि भाई लियाकत मेरे साथ गए, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से भी किस तरह से मिला, किस तरह से मिला। ये तो कल के बच्चे हैं, शर्जील वगैरह, ये तो अब आए, इनको तो पता भी नहीं था, वजूद भी नहीं था। और उस वक्त न जुल्फ़िकार मिर्ज़ा थे पीपल्स पार्टी में, न हमारे मोहतरम आसिफ साहब जरदारी साहब थे। जिनके वालिद मोहतरम होते थे, वो भी जतोई साहब ने नवाब शाह से टिकट दिलाया था, और उसके बाद वो MNA बने थे। मगर कुछ नाशाकी ऐसी हो गई थी भुट्टो साहब से कि उन्होंने भुट्टो साहब को अलविदा कह के ANP ज्वाइन कर लिया, ANP ज्वाइन कर ली। तो ये तो थे भी नहीं, तो स्टूडेंट्स थे। जुल्फ़िकार हुआ, ये आसिफ हुआ, आगा सिराज हुआ, एक शोएब मुन्नी बेगम का शौहर, ये सब आते थे, हमसे मिलते थे हैदराबाद में। ज़्यादातर इनको लड़ाई झगड़ों का शौक़ था, लड़ाई झगड़ों के ये शौकीन थे। तो हमारी बड़ी इस तरह से दोस्ती थी। हम भी उस वक्त जवानी थी, फाइटर टाइप थे, समझे भाई। तो कहने का मकसद ये है कि आजकल के दौर में हम सीनियर्स हैं, हम इनके पास आते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं। शाहिद भाई है, तुर्की में बैठे आए हमारे सराखों पे, हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। इससे पहले भी मेरा जो तारुफ हुआ शाहिद भाई से, वो सोहेल की वजह से हुआ। सोहेल ने एक एजाज़ ये रखा था, इनकी किताब की रहनुमाई वगैरह थी उसमें। उसके बाद फिर हमारा सिलसिला चलता रहा। फिर हमारे मोहतरम भाई उमर वहाँ पर बैठ के सबको जोड़ते हैं, सब दोस्तों को जोड़ते हैं। आपको जोड़ा, उसको जोड़ा, उसको। मुझे ये नहीं पता था कि अनिल भाई कहाँ हैं। आवाज़ महबल में जब मैंने देखा, कितनी खुशी हुई मुझे। उसने कहा, भाई ने, उमर भाई ने, कि यार आप सुन करके उससे ताल्लुक़ बात करें। कहने का मकसद सीनियर आदमी है, बैठे हैं, तो यहाँ पर पॉलिटिक्स यूँ नहीं कर सकते भाई कि वो मिजाज के लोग नहीं हैं। और अब वो जो आए हैं लोग, वो बहुत मुख्तलिफ लोग हैं। अब तालाज में रहकर मगरमच्छ से बैर, तो ये जो हमारे सोहेल भाई फेस कर रहे हैं, भाई कैसे कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े बात की बात है। अल्लाह इनको हिम्मत, ताकत, हौसला दे। हमारे को तो भाई एज ए फ्रेंड, एज ए जो भी समझो, हमारी बहुत रिस्पेक्ट करना। कभी भी कोई काम होता है, हम तो भाई सोहेल को कहते हैं। किसी को भाई सोहेल ने बोला, हाँ भाई आधी रात को हाजिर, ये होता है। और ऐसे ही हम करते थे हैदराबाद में। ये अली नवाज शाह का काम था। अली नवाज शाह सो के नहीं उठता था तो 100 आदमी बाहर खड़े होते थे, साईं 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 साईं। वो हमारे साईं साईं का सीन, कि आपके साईं ने भी साईं बन गया, आपके साईं भी अपने बैंक वाले। वो अजीज़ ने
हमारे उमर भाई ने मेरे मुंह से सुना था साईं, कुछ अरसे बाद मैंने सुना भाई कौन साईं आ गया इधर, भाई इधर कौन साईं आ गया दूसरा, तो वो दूसरा साईं आ गया था। खैर कहने का मकसद ये, मैं बहुत सीनियर आदमी हूँ और मैं, आप भी मेरे बहुत पुराने और अच्छे दोस्त हैं, आपके भी बड़े मुखलिस, तंजीम जैसे देखो जनरल सेक्रेटरी किस हैसियत में मरा, और उसके अगेंस्ट उसी के अहदेदार, उसी के पोस्ट के लोग आज करोड़पति अरबपति गलत काम करके। तो सच और हक का भाई बात करना बहुत मुश्किल है इस दौर में। अल्लाह ताला हिम्मत ताकत हौसला दे हमारे भाई को, सोहेल को और भाई को, और ये हमारे लंदन से लेबर ब्यूरो के हमारे भाई खाकान मिर्ज़ा भाई। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये उस वक्त के होंगे जिस वक्त के हम हैं, जिस वक्त के हम थे उसी तरह 70 के 71 के होंगे। तो अब ये कब लंदन गए कब नहीं गए, नाम सुना हुआ है, गायबाना मुलाकात आज हुई है इनसे पहली दफ़ा। तो बस इतना मैं कहना चाहूँगा भाई। मुझे भाई ये बताएं कि मेहमान आवाज़ का भी स्लोगन यही है, हक और सच बोलना। बिल्कुल। और अपने आवाम को, अपने मुल्क के जो गरीब पिछड़े हुए तबके को हक और सच बात बताना। जी जी। तो हक और सच बताने के आदमी बातों का कीमत भी चुकाता जी है। हाँ। आप बड़े बेबाक तरीके से आपने बात जी। की। आप मुझे ये बताएं कि आज से जब वो बेनज़ीर का दौर हुकूमत था, या बेनज़ीर साहबा जब हयात थी, या इनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हयात थे, तो कारकुनों को इसी लेवल पे देखा जाता था, या अपना फ़र्क आप देखें? बहुत अच्छी तरह देखा जाता था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका एक कैरेक्टर था, उसमें कोई करप्ट नहीं था, करप्शन नहीं था। अगर जो एक मिसाल देते हैं ना कि वो जाम सादिक को भुट्टो साहब ने कहा कि ये छोड़ देना कायद आज़म का मज़ा, तो जाम सादिक अली को पैसे के वजह नहीं देता था, जाम सादिक अली बांटता था मुस्तैद लोगों को, दोस्तों को, गरीबों को, पूछ के उनके घरों पे जाके करता था। यही हाल कटवर का था, यही हाल वो अपने दूसरे कबूल, कौन से कबूल थे वो था, जितने भी थे मिनिस्टर्स थे, कोई करप्ट नहीं था। तो जब लीडर करप्ट नहीं होगा तो उसके नीचे के लोग कैसे करप्ट होंगे? तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है अब में और जब में। अब जो मुखलिस और हक बात करने वाले लोग हैं, अब ये हमारे भाई बैठे हैं, या भाई ये बैठे हैं हमारे लियाकत भाई, उनका दिल जलता है ना कि यार देखो यार, एक आदमी गलत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और हमने इतनी कुर्बानियाँ दी, कब से हमारी कुर्बानी है, अब ज़िंदगी ख़त्म होने को आई है, और हमें एक वो टिश्यू पेपर की तरह से, तो बस ये फ़र्क है। तो अभी भाई ये बताएं कि मुझे कि आप मेरे हमारे काफ़ी हमारी आप सुनते हैं, इंटरव्यूज वगैरह भी हम जी, लेते रहते हैं। जी। अब बड़े बड़े VIP किस्म के लोगों को भी हम जी, लेते हैं, जी, मामूली कारकुनों को भी हम बिल्कुल, लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मेहमान आवाज़ के बारे में क्या कहें? मुझे बहुत ही मेहमान आवाज़ भी बहुत पसंद है, और मेरा भाई हनीफ भी बहुत पसंद है। और हनीफ भाई ने जो मुझे वॉइस मैसेज भेजा, उसके रिटर्न में मैंने जो वॉइस मैसेज भेजा, तो वो भी सुनकर और उसका देखकर मुझे तो बेहद खुशी हुई थी। आपका वो वॉइस मैसेज, मैंने भी जो वॉइस मैसेज भेजा आपको, तो आपने भी उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। अभी ये तासुरात थे सीनियर कारकुनों के, उन सीनियर स्ट्रीम जिससे कहें पीपल्स पार्टी की। अब वो उनके दिल दुख रहे हैं, उनके दिल जल रहे हैं, और ये अपने दिल से बातें कर रहे हैं। और मेहमान आवाज़ अपने प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ उनके जो लीडरान हैं, उनके आला हुक्म में तक पहुँचा रहा है। और मेहमान आवाज़ की यही कोशिश रहती है कि वो लोगों के मसाइलों या वसाइलों जो भी हो, वो आप तक पहुँचाए। इस तरह की मज़ीद जो गुफ्तगू की हम आपको